अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इनसे हम पूछेंगे एससी के बारे में काफ़ी कुछ ऐसे मिथ्स और क्वेश्चंस जिनमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और एससी को एज अ करियर पाथ कैसे लेना चाहिए एंड ऑल दैट इंशाल्लाह। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो डॉक्टर साहब को इन्वाइट इसी वजह से किया है ताकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है एससी को लेकर वो क्लियर किए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना सबसे पहले ब्रीफ इंट्रो बता दें कि अपनी जर्नी और आपने डिग्रीज कौन से की हैं, आपका एक्सपीरियंस और फास्ट को कब से आप इसके साथ लिंक्ड हैं। I have started my bachelor's degree from University of Sargodha in 2009, and I have completed it in 2013 with distinction of bronze medal. माशाल्लाह। After that, I went to industry and worked as a software developer for 7 to 8 months, and then I came back to academia and joined University of Sargodha as a lecturer. And then I served there for more than 4 years, and then in 2000, during that time, I also did my master's in project management as well. And the main aim was that I will move to industry and work as a project manager in the industry as well. But during that time, 4.5 years, I like academia, and to stay in academia, I like to pursue my PhD degree because we know that if we have to work in academia, we need to, you can say, continuously upgrade our degrees as well. So I got a fully funded PhD scholarship from Taylor's University, Malaysia. So I moved to Malaysia in 2018 and came back after completing my PhD in 2021. And at that time, I joined FAST Faisalabad campus as assistant professor. I served there for more than 1.5 years. And then I also served there as a head of department software engineering for 1 year as well. After that, I moved back to Malaysia. I joined University of Southampton, Malaysia, and worked there as assistant professor. Then I moved to Sunway University, Malaysia. I worked there as a senior lecturer and program leader for Masters of Data Science. And then after that, I moved to US University of Florida for my postdoctoral degree. And after completing my postdoctoral, I joined FAST Islamabad campus in 2025, Jan this year. माशाल्लाह, गुड जर्नी। सर, आपने कोई प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए जब आप बैचलर्स कर रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर हाउस भी आपने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग योर करियर? ड्यूरिंग माई डिग्री, अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की तो आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड एंड आई डिड सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स वेरी वेल। मतलब मैं उनको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेता था, जान छुड़वाने की नहीं करता था कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट मोस्टली जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबमिशन करवा देते हैं अक्सर। आई कम्प्लीटली बिल्ट एंड टेक यू कैन से फीडबैक फ्रॉम माई टीचर्स एट दैट टाइम. And then I built a complete software in each semester. So when I graduated, I have like 8 to 9 projects on my CV that are like working on my own. And then yes, I worked as a, you can say, for sake of internships in Sargodha for almost 3 to 4 months. We worked on a .NET platform at that time to build a, you can say, yellow cap system for a foreign customer or client there. अच्छा सर, तब जो एससी में लोग करते थे तब तो ये हमारे पास एआई टूल्स नहीं थे, और आज जो बच्चे एआई करते हैं, अब हर चीज़ अवेलेबल है, कोड जनरेट हो जाता है। तो क्या चैलेंजेस फेस, यानी आप बता सकते हैं कि तब स्टूडेंट्स के लिए क्या थे और अब हर चीज़ आने के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जो एससी डिग्री कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो एआई ने आने के बाद वो बहुत आसानी कर दी है। उस टाइम अगर मैं बात करूं तो मुझे, अगर मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था तो इवन एट दैट टाइम because Android was very new, I built an Android app at that time, and I have to do everything from scratch, even to create a button at that time. But now we have tools like that go for drag and drop, and then auto codes, just like code pilots are there and so on. तो अगर हम बात करते हैं आसानी की, तो मेरे ख्याल से आसानी होगी है, और आसानी को आप, मेरे ख्याल से बच्चे से डर रहे हैं कि ये तो AI जनरेटेड टूल आ गए हैं जो कि सारे का सारा काम खुद कर लेंगे, बट it's not going to replace us. We should not fear from them. We should learn how to use them for our own use. मतलब हम इसे काम फास्ट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, rather than कि हम इसे fearful हो that they are going to replace human beings. In my personal opinion, it's not going to happen. इसीलिए कह रहे हैं ना कि जब से टूल आए हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब्स कम हो गई हैं या ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो ये इसके बारे में बता दिया गया कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको
क्या कॉन्फिडेंस देना चाहिए? नहीं, ले ऑफ इसलिए हो रहे होंगे दैट आर नॉट अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी। अगर कोई चीज आउटडेट हो जाती है देन वो, अगर मैं उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर रहा देन डेफिनेटली ले ऑफ्स विल हैपन। बट अगर मैं डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूअसली लर्निंग भी कर रहा हूँ और अपने आप को अपडेटेड भी रख रहा हूँ, अप टू डेट रख रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिर ले ऑफ्स मेरे ख्याल से वो उसमें नहीं होंगे। Yes, it affects in a bit. Effect is always there. Gen AI ने इसको थोड़ा सा affect किया, but still it's in learning phase. It made huge blunder as well. So human experts are always needed जो कि make sure करेंगे कि ये काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा. Because accountability is there. So machine cannot be taken as accountable. उसको हम accountable नहीं ठहरा सकते. So that then there should be an expert who is going to validate, even it is machine generated code. Some expert should be there that verifies before its deployment. And it also depends upon the system which we are developing. कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जिनमें हमें किसी सिक्योरिटी और किसी प्राइवेसी की जरूरत नहीं होती, but some are like life critical systems, like we have autopilot system and all those things. तो उसमें ह्यूमन कह लें कि इंटरवेंशन और ह्यूमन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, rather than we only rely on the machine based evaluations. डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं वो डिफरेंट कंप्यूटिंग डिग्रीज हमारे पास आ गई हैं, स्पेशली एससी और सीएस, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज भी इतना नहीं होता। जो बच्चा एससी में जाना चाहता है तो उसकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं स्टूडेंट्स कि सीएस में यू हैव मोर ऑप्शंस देन एससी, सो व्हाई नॉट डूइंग सीएस। इस वजह से हम देखते हैं कि सीएस के सेक्शंस भी ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स। तो जो लोग एससी कर रहे हैं वो क्यों खौफज़दा होते हैं या उनको क्यों डराया जाता है, क्या वजह है कि उनको एससी भी करना चाहिए? कह लें कि मेरे लिए तो दोनों डिग्रीज इक्वल हैं, दोनों नहीं बल्कि मैं चारों की बात करूंगा। मैं यहाँ पे सीएस की भी बात करूंगा, मैं यहाँ पे एससी की भी बात करूंगा, एआई डाटा साइंस की भी बात करूंगा और साइबर की भी। ठीक है। इनकी जरूरत ही तो ही डिग्रीज बनी और तब ही ये आज तक मौजूद हैं। और ऐसी काफी पुरानी डिग्री है, काफी पुरानी डिग्री आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस टाइम 9-13 का ग्रेजुएट बैठा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। 8 और 12 पहला बैच स्टार्ट हुआ था और इससे पहले कुछ बैचेस हमारे पास बाकी जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे थे। तो इसमें बच्चे जो डरते हैं, जो समझते हैं कि सीएस और एससी में जो मेन जो एससी को समझते हैं वो थ्योरेटिकल डिग्री समझते हैं और सीएस को प्रैक्टिकल और कहते हैं कि टूल बेस्ड या स्किल सिखाती है आपको जो इंडस्ट्री डिमांड हो। बट ऐसा जहाँ तक कि एससी को कह लें कि एज अ थ्योरेटिकल डिग्री कहना टोटली रॉन्ग है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्योर अप्लाइड डिग्री फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। जी, सो ये प्योर अप्लाइड है, आपके सॉफ्ट स्किल्स ठीक करती है, आपको बताती है हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू वर्क विद टीम्स। एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने, एक बड़ा इंडस्ट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर बनाने में आपकी हेल्प करती है कि टू मेक इट सक्सेसफुल। कि अगर हम सक्सेस की बात करें कि वो यूजर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो, वो टाइमली आपका 1 ईयर का प्रोजेक्ट है तो 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा हो, और फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो जितनी कॉस्ट का आपका सॉफ्टवेयर था उतनी ही कॉस्ट में कंप्लीट हो रहा हो। तो इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग और आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कह लें कि एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कहलाए। ये कहा जाता है कि सीएस के बंदे के पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं एज अ स्पेशलाइजेशन एरिया। तो जो बंदा एससी करता है उसके पास कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर वो अपना जॉब भी सिक्योर कर सकता है? और बाकी आपके पास जो एससी के बच्चे हैं उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि सीएस के बच्चों के पास हैं। यू कैन गो टू एनी डोमेन आफ्टर दैट। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिक नहीं होंगी। yes, maybe you have to cover some deficiency course. अगर हम कंप्यूटर से आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हैं तो then you may have to maybe study computer architecture या compiler construction या TOA theory of automata का course, because सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये कोर सब्जेक्ट्स के अंदर फॉल नहीं करते। बाकी बात करते हैं कोर्स करिकुलम की भी। मैं यहाँ पे बात करता चलूँ कि आपके जो बेसिक आपके पास साइबर, AI डाटा साइंस, आपके पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इनके जो पहले 3 से 4 सेमेस्टर्स हैं जो कि आपके कोर कोर्सेज हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डाटा स्ट्रक्चर्स, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, दोज आर ऑल सेम। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी हमारे पास सेम कोर्सेज जो अभी बात हुई कि वो सेम रहते हैं। उसके बाद हम इनको मूव कर देते हैं जो कि स्पेसिफिक इनकी पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर, टू मेक श्योर कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुल हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। सो इसी के रिलेटेड इनको कोर्सेज करवाए जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल दोज रिलेटेड कोर्सेज। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी आ जाता है आपके पास।
जो कि प्रॉपर मेक श्योर करता है कि SDLC की फेजेस के अंदर किस तरह काम होगा, जो कि इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड देन लेटर ऑन इसी के साथ साथ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि मेक श्योर करते हैं जो आपके सॉफ्ट जो स्किल्स हैं उनको भी मेक श्योर करते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें फेलियर की तो हमारे पास टेक्निकल प्लस मैनेजरियल बोथ काइंड ऑफ इश्यूज आ सकते हैं। सो इंजीनियरिंग आपके जो प्रिंसिपल्स हैं दैट आर गोइंग टू ओवरकम दोज टेक्निकल एरर्स, एंड देन आपके पास जो मैनेजरियल इश्यूज हैं वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के जो हैं प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करते हुए हम ओवरकम कर सकते हैं। लाइक जिस तरह डेवलपमेंट की जॉब्स होती हैं, CS वाले भी कोडिंग कर रहे होते हैं, तो SC वाला बंदा भी फुल स्टैक डेवलपर जिस तरह होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड या बाकी जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आई आल्सो वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इसी तरह फुल स्टैक ऑलरेडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं। लेकिन हाँ एक बात हो सकती है कि CS वाला क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर में भी उसको वो ना रिकमेंड करें या बहुत कम होंगे आपको, बिकॉज CS वाले बच्चे ने वो SC के वो जो सॉफ्ट स्किल्स और वो पर्टिकुलर टेस्टिंग के कोर्सेज शायद ना किए हों, बट येस दे वो हो सकते हैं, बट दे हैव टू गो फॉर द एडिशनल, देन वो सेल्फ लर्निंग की बात है या इंटर्नशिप्स इन टर्म्स ऑफ दैट उनको वो करनी पड़ेंगे। और देन बट यूजली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चों को जो इंडस्ट्रीज हैं बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं हमारे पास वो प्रेफर करते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव दी स्किल्स फॉर दोज। So वो particularly उन्हीं को वो train करते हैं because they know different types of testing and all those skills and tools. So particularly testing point of view से अगर मैं बात करूँ तो software engineering students may have a better edge over the CS graduates. But अगर मैं development की बात करूँ तो CS के बच्चों को भी वही courses development के करवाए जा रहे हैं जो SE के बच्चों को करवाए जा रहे हैं। So CS के बच्चे कह लें कि आपको इसलिए hype शायद लग रही हो because maybe I feel like they self learn a lot. और SE के बच्चों को ये लगता है कि वो थ्योरी पढ़ें एंड दे डीमोटिवेट देमसेल्व्स आई थिंक। क्योंकि स्टूडेंट्स का यही पर्सपेक्टिव है सोशल मीडिया में, तो लोग कहते हैं CS इज अ मोर जेनेरिक डिग्री, यू हैव मेनी ऑप्शंस, SE एक डेडिकेटेड डिग्री है, बस सॉफ्टवेयर हाउस में ज्वाइन करना है या सॉफ्टवेयर बनाना है। क्या ये यहाँ तक किया है कि ये गलत सारी रूमर्स हैं या जो बच्चे गाइड कर रहे होते हैं जूनियर्स? आई थिंक इट्स फ्रॉम ऑल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। मतलब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं इसको ऑल रूमर्स कहूँगा। मे बी किसी के अकॉर्डिंग ये ठीक भी हो बिकॉज मे बी समवन हैज फेस्ड दिस, बट इन टर्म्स ऑफ मी एंड मेरा जितना भी सर्कल था किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको फेस नहीं किया कि मतलब कि उनको किसी ने कहा कि यार आपकी SE की डिग्री है या कुछ इस तरह। नो, इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जब स्टार्ट हुआ था ये डिग्री उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट जॉब्स थी जहाँ पे ये इशू आया था बिकॉज एट दैट टाइम एजुकेटर्स के अंदर ये डिग्री जो टाइटल था पर्टिकुलरली उसको उस टाइम इंक्लूड नहीं किया गया था, तो शायद उस टाइम लोगों को ये पर्सपेक्टिव बिल्ड होना शुरू हो गया था कि SE नहीं CS बिकॉज इसको वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कंसिडर करते हैं एंड सो ऑन। बट नहीं, इसी तरह आप देख लें आप डाटा साइंस और AI आ रही है और साइबर आ रही है, दीज आर न्यू डिग्री प्रोग्राम्स राइट। तो इनके साथ भी वही मतलब होगा स्टार्टिंग कि जब आप जाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब लेने और मे बी वहाँ पे CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT का टाइटल आपको मिलेगा, AI डाटा साइंस का और साइबर का स्पेसिफिक टाइटल नहीं मिलेगा, तो मे बी देन पीपल आल्सो टॉक अबाउट देम एट इन द सेम पर्सपेक्टिव जिस तरह SE। यस, मेरे कुछ दोस्तों ने ये फेस किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइटल के साथ उनको उस टाइम डिनाई कर दिया गया था फ्रॉम द एजुकेटर्स जॉब्स। लेकिन पुरानी बात होगी, वो तो 2013-14 की बात है। हाँ, अभी एजुकेटर्स मैं बात कर रहा हूँ जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे। अगर अभी हम एक डेवलपमेंट एक सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं कि एक डेवलपमेंट की जॉब है, ठीक है, डेवलपर की जॉब है और CS का बंदा भी आता है, SC के भी आता है, तो नॉर्मली इंडस्ट्री जो आजकल है वो क्या चीज देखती है? वो डिग्री देखती है या आप डिग्री देखती भी नहीं है, आपके स्किल को देखती है। हु इज गुड इन यू कैन से ब्रेनस्टॉर्मिंग, सॉल्यूशन बिल्डिंग, आपके सॉफ्ट स्किल, आपका एक काम करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। यस, ठीक है, तो कौन कितने अच्छे तरीके से कोड करता है, सोचता है या काम को अंजाम देता है या टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर एक बच्चा कह रहा है मैंने SC किया है तो शायद CS वाले को अपर हैंड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो सोच के अपना आपको वो डीमोटिवेट करेगा और वो मोटिवेट नहीं रहेगा और उसी वजह से वो मेरे ख्याल से उसके लिए नेगेटिव चला जाता है। ठीक है सर, AI का काफी बूम है, तो जो SC के कोर्सेज हैं उनमें कितनी चेंजेस हुई हैं AI करने की वजह से? AI इन टर्म्स ऑफ अगर चेंजेस की बात करें करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे तमाम कोर्सेज के अंदर मैं इवन हमारे पास जो हम मास्टर्स डिग्री में भी AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। मतलब
the involvement of AI in software engineering as well, the involvement of generative AI in software engineering as well. Even हमारे पास जो PhD के STEM students हैं वो भी इन्हीं thesis के ऊपर काम कर रहे हैं कि how Gen AI and AI can be used in software engineering for better software development. गोल हमारा वही है कि better software development to build a successful software project, and then we can also use AI and data science, all these practices as a tool. अगर मैं पर्टिकुलरली अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की बात करूं तो हमारे पास हमने अभी लास्ट सेमेस्टर के अंदर बच्चों को अप्लाइड है, जिसके अंदर हमने उन्हें कह लें कि एजेंट्स बनाना है एंड देन न्यूरल नेटवर्क्स तक उनको लेके आए हैं, जिसमें उनको बेसिक मशीन लर्निंग, ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स की बात वगैरह की है. एंड देन पर्टिकुलरली अगर मैं इस करंट सेमेस्टर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बैच है उनको जनरेटिव एआई भी ऑफर की गई है. लास्ट टाइम भी हमने जनरेटिव एआई उनको ऑफर की थी. एंड देन पर्टिकुलरली हम इनको इम्प्रूव करें कंटिन्यूसली इन कोर्सेज को, और हम पर्टिकुलरली पर्सपेक्टिव इंक्लूड करने जा रहे हैं कि जिसमें हाउ जनरेटिव एआई इज यूज्ड फॉर बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल. सो वी आर कंटिन्यूसली मॉडिफाइंग आवर कोर्सेज बेस्ड ऑन द नीड ऑफ आवर डिग्री एज वेल. ठीक है. एंड इंडस्ट्रियल डिमांड आल्सो. अच्छा डॉक्टर साहब, ये एससी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कुछ यूनिवर्सिटीज से पीसी से एक्रेडिटेशन इसकी हुई है, कुछ यूनिवर्सिटी एनसेक से है, लाइक फास्ट एनसेक से है, नेस्ट देखें तो वो पीसी रजिस्टर्ड है. तो ये बच्चे कहते हैं जी एससी है लेकिन पीसी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस मिथ को लेकर ऐसे करते ही नहीं है फिर, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से जो कि पीसी रजिस्टर्ड नहीं होती. मेरे ख्याल से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2008 का क्वेश्चन है, जब मैंने अपनी बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी. और उस टाइम फिर चंद एक यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, कोर यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग की थी, वो इसको जो ऑफर कर रही थी बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो पीसी से रिकग्नाइज था. एंड देन एट दैट टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि एचईसी और जिसको कंप्यूटिंग काउंसिल से एक्रीडेट हुई थी, वो उसके थ्रू उसको कर रही थी. जिस तरह अभी हम बात करूँ तो इसमें हमारे पास बहुत कम, अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर करंट स्टेट्स देखें तो पाकिस्तान के आप उठा के देख लें, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो पीईसी रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे रही हैं, और वो कोर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं. उनमें से कोई भी आपके पास जो जनरल पर्पस यूनिवर्सिटी है वो उसको इंजीनियरिंग आपकी पीईसी रिकॉग्नाइज नहीं दे रही. जितनी भी आपकी जनरल पर्पस या बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो कंप्यूटिंग काउंसिल से आपको दे रही हैं. सो इट्स अ कंप्यूटिंग बेस्ड डिग्री एज पर आवर करिकुलम एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. जब आप बात करते हैं पीईसी की, इट कैन बी अ पीईसी डिग्री बिकॉज वो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने जो करिकुलम फॉलो किया और जो जिन एक्रीडिटेशन बॉडीज के बाद के पास गए वो पीईसी थी. एंड देन दे मे हैव अ स्लाइट चेंज इन देयर करिकुलम बेस्ड ऑन पीईसी, एंड देन मे बी कोई कोर्सेज जो फिजिकल इंजीनियरिंग के उनके पास और उन्होंने ऐड किए हों. बट ओवरऑल अगर आप बात करते हैं करिकुलम की तो दैट 80 to 90% हमारा सेम है. एंड अगर बात करेंगे कि पीसी वाले को कोई अपर एज मिलेगी या आपके पास जो कंप्यूटिंग काउंसिल वाले को अपर एज मिलेगी, तो बोथ आर इक्वल इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. बिकॉज अगर आप जाते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग की तरफ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ, आप इंडस्ट्री जाते हैं तो आपसे पीईसी नंबर मांगा जाता है. जी जी. मैं जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में गया हूँ, मैंने जॉब की है, मेरे दोस्तों ने जॉब की है, जब कोई आपसे पीईसी नंबर ही नहीं मांग रहा, हाँ, ठीक है, तो देन ये क्वेश्चन ही किल हो जाता है कि आइदर इट इज अ इंजीनियरिंग डिग्री और कंप्यूटिंग डिग्री. बहुत बहुत कम होंगे मेरे ख्याल से कोई ऐसे इदारे जिसमें पर्टिकुलरली आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ जहाँ पे इसको मैच किया जा रहा होगा, वहाँ पे शायद आपसे पीसी नंबर डिमांड किया जाए. देन इन दैट केस वो दैट इज आई थिंक लेस देन 5% चांसेस जहाँ पे आपको कोई इसका वो फेस करना पड़े. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी एक मैनेजरियल टाइप जॉब होती है, तो इसमें कितनी सदाकत है? इट्स अगेन ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर स्किल सेट. अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि फुल टाइम स्टेम डेवलपर हैं, फुल टाइम स्टैक डेवलपर. सम आर सीईओज, मतलब वो डेवलपर से स्टार्ट हुए एंड देन उन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस डेवलप कर लिए एंड देन दे मूव टू द डेवलपर जर्नी. वो टेस्टर की तरफ नहीं गए, मैनेजरियल पोस्ट की तरफ नहीं गए, दे आर डेवलपर्स. लेकिन एक्स्ट्रा आपके पास एक स्किल है ना, मैनेजमेंट भी आपको यस, एक्स्ट्रा स्किल है. एंड देन एक गुड थिंग इसमें ये है कि there is like certification that project management professional PMP के certification है, ठीक है, तो you can also go for that as well after doing software engineering because आपने जितने भी उसके courses हैं मोस्टली वो किए होते हैं, कुछ क्रेडिट और आप और कवर करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की डिग्री आप कर सकते हैं. इंडस्ट्री के अंदर सर्टिफिकेशंस और ये जो है आपकी डिमांड होती है. अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की डिग्री कर लेते हैं, यू कैन इजीली डू इट आफ्टर डूइंग योर BS degree and then it has a edge in your industry jobs.
ठीक है। बच्चे कहते हैं कि CS काफ़ी मुश्किल होता है, SE कंपैरेटिवली आसान होते हैं कोर्सेज। तो आप बताएं, एज अ टीचर भी और इंडस्ट्री में आपने काम किया है, ये बात ठीक है? CS का थोड़ा सा टफ इसलिए होता है कोर्सेज, अगर मैं बात करूं वो कोर थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, कंप्यूटर वर्किंग की बात करते हैं। सही है। SE के बच्चे थोड़ा सा लाइट इसलिए ले लेते हैं बिकॉज इट इज़ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल स्किल्स, पीपल स्किल्स आ जाती हैं इसमें, सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है। इट्स अप्लाइड, इट्स नॉट कोर। सो वहाँ पे कुछ कोर्सेज के अंदर जो आपको कंप्यूटिंग कोर जो हैं वो थोड़े से मे बी टफ मिले कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इसलिए वहाँ पे मेरे मे बी थोड़ा सा परस्पेक्टिव हो जाए, बिकॉज इट्स R&D बेस्ड एंड कोर आपके पास कह लें कि कंप्यूटिंग की बात आ जाती है तो वो थोड़ा सा बच्चे उसमें कह लें कि फील करते हैं, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड TOA हो गया आपके पास, तो इन कोर्सेज को थोड़ा सा बच्चे डिफिकल्ट फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कौन सी स्किल पर काम करना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग करके अपने आप को कह रहे होते हैं मैं बड़ी स्किल बिल्ड हो रही है, या आप क्या कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, कि किस तरह अपनी स्किल इस तरह बढ़ाएं कि उनका जो है वो स्टैंड आउट भी करें आफ्टर द डिग्री, और बाकी उनका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो? तो उसके बारे में कुछ टिप्स बता दें। अच्छा, हर सेमेस्टर में बच्चों को ना एक काम दिया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट आ रहा होता है। अगर आप ट्रू एफर्ट एक होता है ना कि इंसान के अपने अंदर वो जस्टिफाइबल होता है कि मैंने ये काम अच्छा किया या नहीं किया, आप मेक श्योर करें आप तमाम प्रोजेक्ट्स अपनी फुल एफर्ट के साथ करें, सो वो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा और वही आपकी लर्निंग है। और देन वो एक चीज़ भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ भी कर सकते हैं। लाइक इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, मैंने एक सेमेस्टर के अंदर ASP.NET के अंदर काम किया, एक के अंदर C# के अंदर काम किया, एक के अंदर मैंने एंड्रॉइड के ऊपर काम किया, एंड देन एक में मैंने .NET के ऊपर काम किया, एंड देन माय फाइनल प्रोजेक्ट वाज इन जावा एप्लेट्स। एट दैट टाइम एक्लिप्स को यूज़ करके मैंने उसमें JSP में अंदर जावा सर्वर पेजेस बनाए थे। एंड देन व्हेन आई वेंट टू द इंडस्ट्री आई हैव ऑल दो स्किल, और देन इंडस्ट्री ने मुझे 1 to 2 months की इंटर्नशिप के अंदर वो ट्रेन करके, इट वाज अ फुल टाइम जॉब नॉट इंटर्नशिप, बट 1 से 2 माह के अंदर आई वाज ट्रेन्ड एंड देन आई डेवलप देयर फुल पोर्टल इन ASP.NET। सो आपके पास बेसिक स्किल होने चाहिए, इंडस्ट्री आपको 1-2 माह 3 माह 6 माह के अंदर सिखा लेता है। सो बेसिक जो आपके पास इंडस्ट्री जो आपके पास डिग्री के टाइम है उसको यूज़ करें, अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लस आपके पास तमाम एटलीस्ट चीज़ों का नॉलेज हो जाना चाहिए। आपकी जो डोमेन फाइनलाइज होगी वो बाद में होती है। हमारे बच्चों का जो जहाँ तक मुझे फील होती है कि बच्चे अर्निंग में लग जाते हैं और इन प्रोजेक्ट जो कि उनकी लर्निंग वाले होते हैं उनको वो बैक साइड पे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाते जो कि लास्ट टाइम जो कि लास्ट सेमेस्टर में उनको हेल्पफुल हो जब वो इंटरव्यू के लिए बैठे एंड दे हैव बिकॉज मोस्टली जो फ्रीलांसिंग होती हैं वेरी स्मॉल लेवल्स एंड सम टाइम मे बी दे हैव राइटिंग जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, इवन टेक्निकल जॉब्स आर नॉट देयर, बट they not be giving them beneficial experience। जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो देन ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाता है, एंड देन डेफिनेटली दैट्स वेरी हेल्पफुल जब आप कह लें कि आप फाइनल इंटरव्यूज में बैठते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक सेमेस्टर के अंदर एक लोकल क्लाइंट भी ढूंढा था, एंड देन आई कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। इट वाज लाइक a bike installment management system, just like a showroom, and which gives bikes on the installments, and then I deployed that for that particular client as well, and then that's on my portfolio as well। So जहाँ पे मैं बैठता था मैं उन्हें बताता था कि भाई ये मैंने सिस्टम बनाया हुआ है and that system is working। So these kind of systems, and that's from nowhere, it's just like self learning। So self learning, self motivation, keep yourself updated, and then again there is no degree कि जो आपको make sure करेगी आपको जॉब मिलेगी। You need to make sure कि आपको जॉब मिले। Yes, आपके डिमांड के अंदर कंप्यूटिंग कह लें कि डिग्रीज हैं, and then there is no difference between साइबर, आपके पास CS, AI, डाटा साइंस एंड SE के अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। साइबर की बात करें कि तो बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं साइबर में, बट उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको अभी कह लें कि शायद लिमिटेड जॉब्स हों, बट वेरी वेरी हेल्दी एंड मोर सैलरीज देन दी CS एंड SE जॉब्स। ठीक है सर, इसी तरह एक साइड पर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि हम C++ करा रहे होते हैं ऊप में, डाटा स्ट्रक्चर्स में। तक हम जानते भी हैं कि इंडस्ट्री में जावा और जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ऊप जावा में सीखी जाए, C++ में सीखी जाए, क्या फ़र्क है दोनों का?
अच्छा, ऊप जो है, जो सी प्लस प्लस, जो आपके हम सी प्लस प्लस इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ फंडामेंटल, इट्स नॉट लाइक, अगर मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ सी प्लस प्लस सीखी थी स्टार्टिंग में, हमें भी यही सिखाई जाती थी, सी एंड देन सी प्लस प्लस पे आ जाते हैं, जी जी। बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। और बेसिक उस टाइम पर्पस ये होता है कि आपको सिर्फ समझाना कि कोड काम कैसे करता है। ठीक है। ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज होती है, ये आपको मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स बताती है कि वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होती है, एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आप नहीं करते, आपके पास लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, सी प्लस प्लस आपके पास लो से थोड़े से ऊपर आती है। सो इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है तो सी प्लस प्लस के साथ आप प्रोग्राम्स राइट करके उसको कर सकते हैं। एंड देन जब आप बड़ी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जावा एंड सो ऑन, इसमें लाइब्रेरीज एंड पाइथन, सी शार्प, इसमें पैकेजेस आ जाते हैं, कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम उसका पर्पस किल हो जाता है कि व्हाट वी वांट टू टीच। एंड देन अगर पाइथन की बात करते हैं तो इसमें उस तरह कह लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जो आपके पास स्किल्स हैं वो नहीं हम कन्वे कर पाते, कंपोनेंट्स नहीं समझा पाते जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर हम उसको समझा पाते हैं। ठीक हो गया। So that's why most of the universities usually go for C++ for PF and OOP. And then अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने C++ और OOP सीख ली, अब इसको ब्लेम करना कि मुझे C# नहीं सिखाएगी, मुझे जावा नहीं सिखाएगी, इट्स टोटली रॉन्ग। मैंने खुद C# इसके बाद सीखी, विद इन 2 to 3 वीक्स, विद इन 1 month लग जाएगा मैक्सिमम, बिकॉज लॉजिक बिल्डिंग होगी, आपका सिंटैक्स फिर सिर्फ चेंज होना है। ठीक है। आपने सिर्फ जो सी आउट जो आपने करनी है, स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, वो चीज चेंज होगी, आपका जो ब्रेन बन गया मेन वही है लॉजिक आपकी। ठीक। सो इसीलिए बेसिक है कि इसको सिखाने के लिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सिखाने के लिए और लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है पहले दो इसमें जो कोर प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद यू कैन डू इट एनीवेयर, मतलब आप मुझे जावा किसी ने नहीं सिखाई, मुझे C# किसी ने नहीं सिखाई, बट आई डू माई जॉब इन दैट। एंड बिकॉज मुझे C++ आती थी, मुझे सिंटेक्स चेंज करने में थोड़ी सी कह लें कि वो टाइम लगा था, विद इन 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम। ठीक है, गुड। सर बस लास्ट क्वेश्चन बता दें कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनके 2 सेमेस्टर गुजर जाएं तो वो जो ब्रेक आती है तो कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? क्योंकि एक तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपने बता दिए, वो बच्चों ने कर लिए, तो ये जो 2-2.5 महीने का टाइम होता है और हर साल होता है फाइनल प्रोजेक्ट से पहले 3 साल में, तो क्या सीखना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम से? उसमें अपने सीनियर्स के साथ भी बैठे हैं उस टाइम। मैं तो ये कहूँगा कि इवन सीनियर्स जो कि एक पहले कल्चर होता था, वो कल्चर इतना नहीं रहा। इंसान इतना आई थिंक टीचर्स से लर्न नहीं करता जितना सीनियर्स से लर्न करता है, बिकॉज इट्स माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। इसमें किसी का डिफरेंट भी हो सकता है, बट फ्रॉम माई फर्स्ट सेमेस्टर मैं अटैच हो गया था अपने सीनियर्स के साथ, और उस टाइम मुझे पता चल गया था कि FYP बनाना है। और मैं उस टाइम से, मतलब मैं 2009 में ही शुरू हो गया था कि व्हाट FYP शुड आई डू। अच्छा, ठीक है। और हमारे पास बच्चे क्या होते हैं, अगले वीक में प्रपोजल सबमिट होना, और उस टाइम वो आइडिया ढूंढना स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन कंसीडर द क्वालिटी ऑफ दैट आइडिया एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर मैं उस टाइम जो हर साल जो भी आइडिया होता था, मैं उस पर काम स्टार्ट कर देता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो 3 आइडियाज मैंने चूज किए थे, वो मेरे 3 समर में एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट और वो पोर्टफोलियो बन के मेरे साइड पे हो गए थे। एंड देन आई गो फॉर एन R&D ड्यूरिंग माई FYP। और इसमें यह था कि मैं समर में सीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करता था, मतलब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न कर लेता था, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर रहे होते हैं उनको देख लेता था। एंड देन इसी तरह कह लें कि मैं फर्दर जो था कुछ और प्रोग्रामिंग स्किल सीख लेता था, FYP पे जो काम हो रहे थे उनको देख लेता था कि क्या क्या हो रहा है, दोस्तों के साथ बैठ जाता था। सही है। और देन एट दैट टाइम उसमें प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास सरगोदा में सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं थे, बट इस्लामाबाद इज गुड, लाहौर इज गुड, फैसलाबाद इज गुड, आपकी 3 मेन इंडस्ट्री के हब्स हैं। तो आप इसमें से सॉफ्टवेयर हाउस चूज करें, और ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस चूज करें कि जो आपके पास कोई लर्निंग स्किल दे आपको प्रॉपर। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, सेल्फ लर्निंग अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर हाउस, इट विल बी गुड, मतलब एक अच्छा है प्लस। लेकिन उसमें सीनियर के साथ कम्युनिकेशन ना छोड़ें। FYP का आपके पास जस्ट पहले सेमेस्टर से होना चाहिए, आप उसमें लग जाएं कि भाई मुझे प्रोजेक्ट मुझे तो काफी टूल सीखने पड़ते हैं FYP, बिकॉज ये इसका एक पर्पज ये है कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे, वो पूछेंगे आपका FYP क्या था। ठीक है, ये आपकी CV का पार्ट है। इट विल बी लाइक, मैं अभी भी बैठा हूँ तो मुझे अभी भी पूछ सकता है कोई कि भाई आपका FYP क्या था। जॉब्स मिलती हैं इसकी बेस पर आपको। सो FYP इज योर लाइक अदर नेम, मैं तो ये कहूँगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके अपने ज़बरदस्त जो है कंसर्न्स जो लोगों के थे उनको डाउट्स को क्लियर किया। लेकिन फिर भी मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि किसी का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो रिप्लाई कर दें या मुझे बता दें, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा।
विश यू गुड लक टू ऑल स्टूडेंट्स। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।